Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I'm Vandana and we are doing book 8. This is your SST book and the name of your book is Time Travelers Unraveling Histories, Mysteries. So children, today we are going to start with a new chapter and this is chapter number 4 of your book, and the name of this chapter is Colonialism and Tribal Societies. So let's start with this chapter. Here you have to identify the woman shown in the picture, and she belongs to a Santhal community, one of the India's largest tribal group. Write what you know about her. So children, who is she? You have to find it out. She is Draupadi Murmu. She is the President of India, and you have to write down a few lines on her. Each tribal society has its own set of common rituals and belief system and its own language. So जो भी ट्राइबल सोसाइटी होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ खुद के बिलीव्स होते हैं और अपनी ही लैंग्वेज होती है. ट्राइबल्स आर जनरली रिफर्ड टू एज आदिवासीज इन इंडिया, और ट्राइबल्स को इंडिया में आदिवासीज भी कहा जाता है. In pre-British times, these tribals usually inhabited the fertile, hilly and forest ranges of India. So जब ब्रिटिश टाइम से पहले की बात है, उससे पहले ये जो ट्राइबल्स थे ये कहाँ रहते थे? ये फर्टाइल हिली एरियाज में रहते थे, फॉरेस्ट रीजन में रहते थे इंडिया के. They survived mainly by hunting and gathering and by practicing shifting cultivation. ये लोग जो है सर्वाइव कैसे करते थे? ये हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी प्रैक्टिस किया करते थे. अमंग ट्राइबल्स द लैंड इज जॉइंटली ओन्ड बाय द ट्राइब. जो ये ट्राइबल्स है उनका जो लैंड है वो सबका ही लैंड है, वो जॉइंटली इन सबका लैंड कहलाता है. द ट्राइबल्स डिपेंडेंट ऑन द natural resources of the forest. They live and had customary rights over it and its products. So जो ट्राइबल डिपेंडेंट हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं जो भी फॉरेस्ट से मिलता है, और दे ले जहाँ पे वो रहते हैं, एंड इनके पास कस्टमरी राइट्स होते हैं उस प्रोडक्ट के, एंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस सस्टेनेंस, जिसकी वजह से सस्टेन कर पाते हैं. ट्राइबल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल में ट्राइबल लाइफ कैसी थी? अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम मोर लैंड्स वर बॉट अंडर कल्टीवेशन. सो जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उस समय जो है ज़्यादातर लैंड जो है कल्टीवेशन में यूज किया जाता था. इन bid to cultivation more land, the British often drove away the tribals from their forest land. So अब जो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो ट्राइबल्स थे उन्हें उनके फॉरेस्ट लैंड से दूर भगा देते थे. Moreover, these forests were rich in natural resources like minerals and timber. और ये जो फॉरेस्ट थे ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए होते, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते थे, टिम्बर मिलता था. So the British inferred in tribal areas for the purpose of exploiting the natural resources. इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे इन एरियाज में घुसते थे, यहाँ के ट्राइबल पीपल को भगा देते थे ताकि यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकें. The opening of mines and even a few factories in the heart of tribal area. कुछ माइंस खोल दिए गए, कुछ फैक्ट्रीज को खोल दिया गया इन एरियाज में. Here you can see the map showing the areas inhabited by the tribals in India in the colonial period. So colonial period में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे इन tribals ने अपना घर बना रखा था. Here you can see these places are marked here, and the name of the tribes are also written here. Provided wage labor as well as opportunity of employment for the tribes. But this also brought increasing destitution and displacement. So इन सारी चीज़ों की वजह से destitution और displacement जो है start हो गई. Coupled with this, the tribal land were now accessible to money lenders.
अभी जो ट्राइबल लैंड्स थे वो मनी लेंडर्स भी एक्सेस कर सकते थे, ट्रेडर्स एक्सेस कर सकते थे और जमींदार भी एक्सेस कर सकते थे. हु सेट अप बिजनेस इन द ट्राइबल एरिया, इन्होंने अपना बिजनेस में स्टैब्लिश कर लिया था, सेट कर लिया. They would also offer loan to tribals, and failure to return the loan often resulted in the tribal losing out their land to the money lenders. So अब ये क्या करते थे, ट्राइबल्स को लोन भी देते थे और अगर ये लोन को वापस नहीं कर पाते थे तो इनसे इनका लैंड ले लिया जाता था. तो ये करते थे ये मनी लेंडर्स. After the British came to power, the forest policy of the British government was more inclined towards commercial consideration than human interest. So, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए पावर में तो इन्होंने जो भी फॉरेस्ट पॉलिसीज थी उन्हें चेंज किया और इनका जो मेन मोटिव था वो कमर्शियल कंसिडरेशन था. ह्यूमन इंटरेस्ट में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. मीन्स ह्यूमंस के बारे में ये नहीं सोचते थे, ये सिर्फ अपने आप को कमर्शियली ग्रो करना चाहते थे. Some forests which fell within the reign of the tribals were declared as reserve forests. कुछ जो फॉरेस्ट थे इस एरिया में उन्हें जो है रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया. Hence, here only authorized contractors were allowed to cut timber and forest dwellers were banned from carrying out any economic activity. सो इन जगहों पे जो ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर थे सिर्फ उन्हें जो है इजाज़त थी कि वो वहाँ से फॉरेस्ट में से लकड़ी कर सकते हैं, टिम्बर कट कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो बैन थे, वो यहाँ पर नहीं आ सकते और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते थे. देयर वाज नो कंपनसेशन ऑफर्ड इन दिस प्लेस. इस जगह पे कोई भी तरीके का कॉम्पनसेशन ऐसे लोगों को नहीं मिलता था. द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया हैवीली डिवास्टेटेड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया. और जब रेलवेज को एक्सपैंड किया गया, बढ़ाया गया, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे डिवास्टेट होने लगे, खराब होने लगे. The government started reserving teak, sal and deodar forest for the manufacture of railway sleepers. So अब जो रेलवे जो गवर्नमेंट क्या करने लगी, टीक, साल और देवदार के जो लकड़ियां थी उन्हें यूज करने लगी रेलवे स्लीपर सीट बनाने के लिए. Forest land and its resources that had provided livelihood to the tribals were now exploited. अब जो ये एरिया था, जो फॉरेस्ट था, जो इन ट्राइबल लोगों को जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करता था, उस फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया गया. So this resulted in tribal life being greatly disturbed. और इसकी वजह से जो ट्राइबल लाइफ थी वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई. इफेक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन ट्राइबल्स. अब कोलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट था ट्राइबल्स पे. बाय द मिड 19th century the British took over huge tract of forest. सो जैसे ही मिड 19th century का मिड आया तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट की तरफ रुख कर लिया. As they needed large supplies of timber for shipbuilding and for making sleepers for railway tracks. क्योंकि इन्हें ज़्यादा trees चाहिए थे ताकि ये अपने ships बना सके और sleeper coaches बना सके अपने railway tracks के. They regarded shifting cultivation as a wasteful practice. उन्होंने कहा कि जो shifting cultivation है ये एक wasteful practice है, as it destroyed forest timber. जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट टिम्बर है वो डिस्ट्रॉय होता रहता है. Also, as the shifting cultivators did not settle down permanently, no revenue settlement could be made with them. So जैसे ये जो shifting cultivation था वो जो है ठीक से सेटल डाउन नहीं हो पाया था, तो अगर जो है तो इस केस में कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा. And this deprived the British of value land revenue. और जिसके बाद जो है ब्रिटिशर्स को लैंड रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा. Therefore, the British encouraged settlement agriculture and tried to end shifting cultivation. So अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सेटलमेंट एग्रीकल्चर को encourage किया और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है बंद कर दिया. They enacted forest laws which knocked out certain forests. अब इन्होंने कुछ फॉरेस्ट लॉज बना दिए थे जो कुछ फॉरेस्ट
में लागू थे. द कंपनीज फोर्स क्लैशिंग विद द ट्राइबल्स. कंपनी जो है फोर्सफुली ट्राइबल्स के साथ लड़ती हुई आपको यहाँ पे दिखेगी. एज रिजर्व एरिया, कंपनी ने कुछ एरियाज को एज अ रिजर्व एरिया घोषित कर दिया, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व एरिया में कन्वर्ट कर दिया. The tribal people resident in these forests were prohibited from practicing shifting cultivation and using forest produce. So ये जो ट्राइबल लोग थे, रेसिडेंट थे जिस इन फॉरेस्ट के, उन्हें जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है प्रोहिबिट कर दिया गया, रोक दिया गया. एंड यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी यूज नहीं कर पा रहे थे. There are about these many tribal people living in the rainforest of the world. So rainforest जो भी है वर्ल्ड में, उनमें इतने सारे ट्राइबल लोग रहते हैं. These people depend on the forest for their food and shelter. अपने फूड और शेल्टर के लिए ये लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं. The tribals did not have the concept of ownership rights. So tribals के अंदर ये ownership right वाला जो है concept था ही नहीं. The British manipulated the situation and took away their lands. ब्रिटिशर्स ने इनकी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया और लैंड को ले लिया. The tribals either came under the debt of the money lenders or became landless laborers. ये जो ट्राइबल्स थे, या तो जो मनी लेंडर्स थे उनके कर्ज के नीचे आ गए थे, या तो ये लैंडलेस लेबर्स बन चुके थे. When the loan of the money lenders could not be paid on time, the interest rate rose, and this led to a debt which passed on from one generation to the next. जब ये लोन जो है मनी लेंडर्स नहीं चुका पाए टाइम, जब ये जो लोन मनी लेंडर से जो लिया गया था वो ट्राइबल्स नहीं चुका पाए टाइम पे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बढ़ता चला गया, जिसके बाद जो है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होता चला गया. The traders often charge very high prices for the goods that the tribal purchased from them. So जो भी चीजें ट्राइबल्स खरीदते थे उसका बहुत ही ज्यादा प्राइस लेते थे ट्रेडर्स. Together the British, the money lenders and the traders exploited the tribals. अब ये सारे एक साथ मिलकर ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया इन्होंने. These group of people were referred to as Dikus by the tribals. So इन लोगों को जो ट्राइबल्स थे वो दिकूस कहते थे, मीनिंग आउटसाइड, जिसका मतलब था बाहर के लोग. द ट्राइबल पीपल रेजिस्टेड देयर प्रेजेंस इन देयर टेरिटरी. जो ट्राइबल लोग थे वो उनकी जो प्रेजेंस थी उनकी टेरिटरी में वो बंद हो चुकी थी. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू लॉज इन द फॉरेस्ट whereby the tribal were put under a lot of restrictions and also lost the freedom to use the forest resources. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नए लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए थे फॉरेस्ट में, जहाँ पे जो ट्राइबल्स थे जिन उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, वो अपने फ्रीडम को भी खो चुके थे और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे थे. This brought a major change in their lives as it shook the very basis of the system. और इसके वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए. Now they were required to pay taxes for using the land, which from times immemorial had been theirs. So अब उन्हें उसी लैंड का टैक्स देना था जो बहुत समय से उनका था. There was considerable involvement of the missionaries in the socio-religious life of the tribes. So यहाँ पे बहुत सारे कंसिडरेबल इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गए मिशनरीज के, जो सोशियो रिलीजियस लाइफ जो इन ट्राइबल्स थी उनके बारे में कंसर्न. द ट्राइबल्स फेल दैट देयर वे ऑफ लाइफ वाज बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द न्यू वेज. अब ट्राइबल्स को ऐसा लगने लगा कि उनकी जो वे ऑफ लाइफ थी उसे जो है चेंज किया जा रहा है और नए वेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. However, the missionaries soon took on a modernizing role that was helpful to many classes of the society. तो ये जो मिशनरीज थी उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसके बाद जो है बहुत सारे जो क्लासेस थे सोसाइटी के उनमें काफी इम्प्रूवमेंट आया. Now, tribal chief under the British rule. Before the arrival of the British, the tribal chief were important figure in many areas. So ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो ट्राइबल चीफ थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
फिगर था इनके एरिया में. दे enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territory. इनके पास कुछ इकोनॉमिक पावर हुआ करती थी और इनके पास जो है वो एडमिनिस्टर करने की राइट्स थे जिससे अपने टेरिटरी को कंट्रोल कर पाते थे. इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस फोर्स एंड डिसाइडेड द लोकल रूलर्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. सो कुछ जगहों पे इनके जो है खुद के जो है पुलिस हुआ करती थी और ये जो भी लोकल थे डिसाइड क्या करते थे कि about the land and the forest management. Under the British rule, the function and the power of the tribal chief changed considerably. So जब ब्रिटिश रूल आया तो इनके जो पावर्स थे वो चेंज हो गए. They were allowed to keep the land titles over a cluster of villages and rent out land. So इन्हें जो है अलाउ किया गया कि अपना जो है पर्टिकुलर लैंड जो है रख सकते हैं और जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं उनपे उनको जो है रेंट के तौर पे लैंड दे सकते हैं. बट दे लॉस मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन इनमें जो है इनका जो काफी सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है खत्म हो चुका था. एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया. और ब्रिटिशर्स जो भी लॉ बनाएंगे उसे ही फॉलो करना इन्हें था. दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश. इन्हें ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था. And discipline the tribal group on behalf of the British. और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्हें चुप कराने का डिसिप्लिन में रखने का भी काम इनके था. This alienated them to their own society. जिसकी वजह से इनकी जो खुद की सोसाइटी थी ये उससे दूर हो गई. They lost the authority that they had earlier enjoyed among their people. जो अथॉरिटी इन्होंने पहले अपने लोगों के बीच में मिली थी वो सब ये खो चुकी and were unable to fulfill their traditional functions. और अपने जो भी traditional functions थे उसको भी fulfill नहीं कर पाते. Discontent of tribals. Tribals were constantly in conflict with the forces trying to exploit their illiteracy, ignorance and the knowledge of the rich natural resources. So जो tribals थे वो बार बार कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, लड़ रहे थे इन ब्रिटिशर्स से, इन फोर्सेस से, जिन्हें ये लगता था कि ये जो ट्राइबल्स है वो इलिटरेट है, इग्नोरेंस है, उन्हें नॉलेज नहीं है चीज़ों की, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इन लोगों से वो लड़ रहे. डिस्प्लेस देम फ्रॉम देयर होम्स, alienated from their lands and deprived of their resources, the tribal people often resorted the armed revolt in the place. So ये जो ट्राइबल्स थे इनके घर से निकाल दिया गया, इनके लैंड से हटा दिया गया, जो रिसोर्सेज थी उससे भी हटा दिया गया. तो ये जो ट्राइबल पीपल थे ये बहुत कई बार इन्होंने रिवोल्ट भी किया. इन द रंपा रेन ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट. सो रंपा रेन जो था रीजन है वहाँ का, जो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 12 ट्राइबल रिवोल्ट occurred between 1770 to 1924. So 1770 से लेके 1924 तक कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट चले इसमें. The main cause of these were the general discontent of the local administration and traders. So इसका जो मेन कॉज था वो जनरल डिस्कंटेंट था या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था या ट्रेड था, एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड द हैंड्स ऑफ आउटसाइडर्स. सो ये सारी चीजें थी, एक्सप्लॉयट भी, ये जो आउटसाइडर्स थे जिन्हें आउटसाइडर कंसिडर किया था, ये लोग जो है इन्हें एक्सप्लॉयट भी करते थे. वन रिवोल्ट बिटवीन 1879 to 1916 was against the creation of forest reserves. So एक रिवोल्ट जो है 1879 से लेके 1916 तक हुआ था, जिसमें जो है फॉरेस्ट रिजर्व बनाए जा रहे थे, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट था. एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्राइबल पीपल्स एक्सेस टू द जंगल. और जो है ट्राइबल लोगों को जंगल का एक्सेस भी नहीं था, ये जंगल नहीं जा सकते थे, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, तो इसके खिलाफ भी रिवोल्ट किया गया. ट्राइबल अनरेस्ट एंड डिसकंटेंट विद द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू. ये जो ट्राइबल अनरेस्ट था या डिसकंटेंट था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो कंटिन्यू होता गया इंडिपेंडेंट इंडिया में भी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था. द इंडर वैली इंसिडेंट of 1981 was triggered by land
alienated and large-scale entry of aggressive and acquisitive non-tribal communities. So ये जो इंसिडेंट हुआ था 1981 में, उसने जो है काफ़ी सारे जो लैंड थे और जो लार्ज स्केल एंट्री था उन सबको जो है नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज ने एक्विजिशन में ले लिया. ट्राइबल uprisings. The constant effort by the British to displace the Adivasi community and to disrupt and break their isolation. So ये जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉन्स्टेंटली जो है बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे थे आदिवासी कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए, इन्हें तोड़ने के लिए, इनके आइसोलेशन को तोड़ने के लिए. रिजल्टेड इन द सीरीज ऑफ रिवोल्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कंट्री. सो कंट्री के लेंथ और ब्रेड्थ किसी भी साइड आप चले जाओ, यहाँ पे हर जगह रिवोल्ट हो रहा था आदिवासी के द्वारा. हेंस he would be looking for the Santal and the Mundra uprising. लेकिन फिर भी ये संतल और मुंद्रा अपराइजिंग को देखेंगे. What is Santal uprising? The Santal inhabited some part of the Chota Nagpur plateau, Bengal and Bihar. The Santal rebellions was as much against the British police and revenue officials as it was against the opposition of outsiders. So ये जो संतल inhabitants थे, संतल was a place. So यहाँ के जो inhabitants थे वो कहाँ के लोग थे? वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के लोग थे एंड बंगाल के थे, बिहार के थे. So ये जो संतल रिबेलियंस थे वो ये जो इनका जो रिबेलियन था वो किसके खिलाफ था? ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ था, या जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स था उनके खिलाफ था. As it was against the opposition of the outsiders. Outsiders के opposition के लिए था. Under the leadership of four brothers Sindhu, Chand, Bhairav and Kanhi. So चार भाइयों ने मिलके रिवोल्ट जो है इनके लीडरशिप के अंदर ये रिवोल्ट चला. They met in large numbers in June 1855. So 1855 की बात है, उस समय जो ये काफी सारे लोगों से मिल चुके थे. They cut off postals and railway communication between Bhagalpur and Rajmahal and were in complete control of this area. So इन्होंने जो भी communication था रेलवे का हो चाहे पोस्टल का हो उसे कट कर दिया था और ये जो एरिया है इनके कंट्रोल में आ चुका था, भागलपुर से लेके राजमहल. Armed with swords and poisoned arrows, they attacked every outlying European bungalow and killed some British railway and police officials. So अब इनके पास swords आ चुके थे, poison arrow थे इनके पास, जिससे अटैक करते थे. जो भी यूरोपियन इनको बंगलो दिख जाता था उस पर अटैक कर देते थे, वहां के ब्रिटिशर्स को मार देते थे, रेलवे वालों को मार देते थे, पुलिस ऑफिशियल्स को मार देते थे. The Santals mainly used the tactics of guerrilla warfare. इन्होंने guerrilla warfare को अपना रखा था, उनके tactics को यूज करते थे. The authorities were taken by surprise and panic-stricken. People fled by the thousands. अब जो authorities थे वो परेशान हो गए, सरप्राइज हो गए और वो वहां से निकलने लगे. When the rebels were pursued by the British forces, they took shelter in the thick jungles. और जब ये rebels जो है ब्रिटिश फोर्सेस ने यहाँ इस जगह को छोड़ा तो इन्होंने वापस जंगल अपनी जगह ले ली. Till February 1856, they showed no signs of submission and were openly at war with the British. So 1856 तक इन्होंने अपने आप को जो है सबमिट नहीं किया था ब्रिटिशर्स के सामने और ये वॉर किए जा रहे थे. Finally, the British authorities launched a military campaign against the Santhal. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? संथल के आसपास की जगह में एक मिलिट्री कैंपेन लगा दिया and crushed them और उन्हें मार दिया. Their leaders were arrested and the movement came to an end. और इनके जो लीडर्स थे उन्हें पकड़ लिया गया और मूवमेंट यहीं पे खत्म हो गया. Now the next is Munda uprising. The Mundas were a peace-loving tribe of Chota Nagpur reign. So छोटा नागपुर के ये जो लोग थे वो peace-loving tribe था. Being regarded as the original clearers of forests, the Mundas had always enjoyed preferential land rights of their region.
सो ये जो मुंडास थे ये फॉरेस्ट क्लियर्स थे और इन्होंने जो राइट्स थे उस रीजन के वो काफी अच्छे से एंजॉय कर। अंडर ब्रिटिश रूल दे वर डिनाइड दिस प्रिविलेज बाय द coups such as money lenders contractors। सो जब ब्रिटिश रूल आया तो जो मनी लेंडर्स थे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने उनके अधिकार उनसे छीन लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स in the late 19th century Birsa Munda led an armed revolt for the independence of the Mundas from colonial rule। So इस colonial rule से छुटकारा पाने के लिए इंडिपेंडेंस पाने के लिए बिसरा मुंडा ने एक आर्मी रिवोल्ट स्टार्ट की। बिसरा मुंडा was probably born in ओलिहाटू in रांची, वो रांची में बॉर्न हुए थे जो झारखंड में है। And he received some education from Christian missionaries but later came under Vaishnav influence। So Christian missionaries से उन्होंने एजुकेशन ली थी लेकिन बाद में आके वैष्णव इन्फ्लुएंस में आ गए थे। As a young man, Bisra became sensitive to the exploitation to the Mundas। So जब एक यंग मैन थे तो बहुत ही सेंसिटिव थे, जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता था मुंडास का उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। बाय द डिकूज, ये जो डिकूज जो इनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। He joined a protest against the taking over of village wasteland by the British। इन्होंने एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया जो इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, जो इनके वेस्टलैंड टेकिंग ऑफ द विलेज वेस्टलैंड, जो विलेज का वेस्टलैंड था इन्हें ये जो ब्रिटिशर्स टेक ओवर कर रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। In 1894, the failure of the monsoon caused widespread starvation and epidemics। So 1894 में क्या हुआ, जो मानसून था वो आया ही नहीं, जिसके वजह से लोग मरने लगे, भूखे मरने लगे और बीमारियां फैल गई। Birsa's dedicated service to the starving and the sick earned him the title धरती आबा। So इन्होंने पूरी मेहनत से पूरी लगन से इन लोगों की सेवा की और जिसके बाद इनको नाम मिला धरती आबा, means father of the earth। And the leadership of his people। As leader of the Munda, he demanded the remission of the forest taxes। He was arrested and exploitation continued। So जो इन्होंने रिमिशन मांगा था, फॉरेस्ट टैक्सेस को कम किया जाए, खत्म किया जाए, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और लेकिन फिर भी एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा। After his release in 1897, Bisra led a movement which sought to establish an independent Munda state। So 1897 के में जब ये रिलीज हुए, जब ये छूटे जेल से, तो उन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए जो है आगे बढ़े। He wanted his people to earn their livelihood on their traditional manner and improve their economic condition। ये चाहते थे कि इनके जो लोग हैं वो अपने ट्रेडिशनल मैनर से ही जो है लाइवलीहुड को अर्न करे और अपने इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करे। He urged them to unite against the decrees। उन्होंने अपने लोगों से बोला कि आपको एक होना पड़ेगा इन डिक्रीज के खिलाफ। It is said that Bisra claimed to have miraculous powers by which he could turn guns and bullets into water। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास कुछ ऐसे मैजिकल पावर्स थे, मिराकुलस पावर्स थे जिनसे ये गन्स और बुलेट्स को वाटर में कन्वर्ट कर देते थे। बिसरा won many followers। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे जो इनको फॉलो करते थे। His slogan was अबुआ राज सतेजना महारानी राज तुंदे जना। इसका मीनिंग है let the kingdom of the queen be ended and our kingdom be established। Now the British came down heavily to the Mundas। जो ब्रिटिशर्स थे वो मुंडास के पास आ गए, गुस्से में आए ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द 19th century, जब 19th century खत्म होने वाला। There was several armed conflict between the British and the Mundas। और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई। Many Munda men and women fighting with bow and arrow and catapult fell to British bullets। So ब्रिटिश के बुलेट्स का ये लोग शिकार हो गए। Even children were not spared। बच्चों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। Many Mundas were arrested। बहुत सारे मुंडास को अरेस्ट किया गया। Bisra too was arrested and imprisoned in the Ranchi jail where he died in captivity। So बिसरा को भी अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें रांची जेल ले जाके फांसी की सजा दी गई।
Now children, let's come to the book exercise. Answer the questions in short. How tribals associated with natural resource of the forest. So tribal से कैसे associated है natural resources जो है forest के? The tribal people mainly lived in the high forest, livable areas, the fertile areas, and they are totally dependent on the natural resources of the forest. That's why it is said that tribals are associated with the natural resources of the forest. Why did tribal often fall under the clutches of moneylenders? तो ट्राइबल्स से वो बार बार इनके मनी लेंडर्स के क्लचेस के अंदर कैसे फंस जाते हैं? दिस यू हैव टू राइट ऑन. What generally followed if a tribal could not pay back the money lender? So अगर एक ट्राइबल मनी लेंडर को नहीं पैसे दे पाता तो क्या होता था? So if the tribal was not able to pay back the money lender, his land would be occupied by these money lenders, and a huge amount of taxes will be increased. The rate of interest was so high that is increase the amount that the different generations had to pay that. Now give two reasons of tribal discontent. Tribal discontent के क्या दो reason है? That you have to write a short note on Bisra Munda. Bisra Munda के बारे में अभी हमने पढ़ा था. What all things that you remember, write it here. Now let's come to answer in detail. What problem did shifting cultivators face under British rule? So the shifting cultivators faced a lot of problem under the British rule. The Britishers said that shifting cultivation is a bad idea and it is making the land barren. So this type of cultivation should be abolished. How did the powers of tribal chief change under colonial rule? So colonial rule के अंदर जो tribal chief था उसके powers कैसे change हो गए? The powers of the tribal chief changed under the colonial rule as the tribal chief had to face his people and they were against this tribal chief. The tribal chief was not able to fulfill all the requirements of the Britishers, and even he was not able to face his people. What accounted to the anger of the tribal against the Dikus? So Dikus के खिलाफ tribals की क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से एंगर उनका बढ़ता चला गया? What was the Santal uprising about? Santal uprising किसके बारे में? Do you think tribal revolt was successful in achieving their objectives? क्या आपको ऐसा लगता है जो tribal revolt है वो successful था objectives को achieve करने में? So children, find out the answer of these questions. I hope that you have understood the chapter. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.